So look at these methods of our generation of our carbene. So there are varieties of what carbene synthesis are there, and they are obtained by the thermal or photochemical, or one can say by using the transition metals. So these are the organometallic. This reaction is based on organometallic synthesis. This is OMC. This is the thermal or photochemical elimination. This is alpha elimination. This is called as a alpha alpha elimination. Okay, and this is called geminal dihalides. From the geminal, okay, so in which all gives the free carbene. Okay, so these are the four important methods from which carbenes are generated. Understood? First from first from chloroform, you know that alpha elimination. Second from diisomethane under the treatment of photolysis or thermolysis. Third one from geminal dihalo by the treatment of what organo lithium. दोनों भी बी आर हम निकाल रहे हैं इसमें से. And fourth one from diazo ethyl dicarboxylate. Okay, or simply carboxylate. So that will be carbenes are obtained. And you know that carbenes are highly energetic one, so it react very fastly. Okay, so and you know that that's why these the carbenes are said to be the one of the reactive intermediate. The secondly, sometime the transition metal are also be used to prepare the carbene. An example is copper and rhodium. Copper and rhodium, these are the two transition metals from which the carbenes are generated. Okay, so we will discuss the some reactions of what rhodium and copper, how they help to generate the carbenes now. Okay, and particularly in the transition metal, or when we'll discuss the organometallic chemistry, in that particularly the role of what copper and rhodium will be discussed now, because these two metals are responsible for generating the free carbene. Okay, or why we are going to discuss that carbene. So then we have the first important reaction. That reaction is called as a Bamford-Stevens reaction. Bamford Bamford-Stevens reaction. So this is a very important reaction for making, or in which carbene is developed now. होता है तुम्हारा कार्बिन बनेगा. ठीक है, चलिए. So this Bamford-Stevens reaction is an example of elimination reaction. कहीं ना कहीं elimination आपका होता है और हम कार्बोनिल कंपाउंड से कोई अलग फंक्शन को बनाते हैं. We'll discuss first of all the reaction scheme now. Look at this one now. So any carbonyl compound on treatment with the toluene, one can say hydrazine now. Okay, tosyl hydrazine, that means TS NH2. क्या किया हमने? In the presence of an acid. So what we have to going to do now? So we are going to convert carbonyl compound to, or the react with the tosyl hydrazine. Tosyl hydrazine मतलब क्या होता है? ये hydrazine है simply. This is what NH2. इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइड्राजीन. और हाइड्राजीन जब टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है, किसके साथ? दिस इज CH3, दिस इज SO एंड Cl. क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ए टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड. शॉर्ट फॉर्म इज TS. एंड दिस, ये कौन है? हाइड्राजीन है, राइट? So you know Yes, sir. that the lone pair will going to react with the sulfur. One of the hydrogen from this one will be eliminated with Cl. तो आपको क्या मिलेगा फिर यहाँ पे कंपाउंड? That compound is called as a TSNH NH2. So देखो क्या मिलेगा आपको. Suppose this is my toluene. यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप लिखता हूँ. ये क्या हो जाएगा? SO. This will be NH and NH2. तो ये जो पूरा जो ग्रुप बना है ना, यहाँ से यहाँ तक मैं क्या बोल रहा था इसको TS, और आगे क्या लगा हुआ है? NH और NH2. इसको बोलते हैं टॉसिल हाइड्राजीन, राइट? Okay, so it is one of the best reagent to convert that carbonyl compound into the hydrazone. ठीक है, so अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टॉसिल हाइड्राजीन की जो रिएक्शन है वो कर रहा हूँ मैं कार्बोनिल के साथ में. पढ़ने वाले हम आज पढ़ने वाले की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम द, से पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉसिल. नाउ अब क्या हो जाएगा? यू नो द कंडेंसेशन रिएक्शन, द टू हाइड्रोजन फ्रॉम द टॉसिल हाइड्राजीन गोइंग टू बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट डेवलप द हाइड्राजोन. अब इस कंपाउंड को मैं बोलूंगा टॉसिल हाइड्राजोन. Okay, now this tosyl hydrazone is going to be react with the weak base now. Example है मेरे पास sodium methoxide, NaOMe. What happened with this now? So that hydrogen is much more acidic because of TS, because of the more withdrawing nature of the TS now.
So next step is what? क्या हो जाएगा? After the abstraction of proton, what happened? Negative charge should be on nitrogen. Now look at the reaction. Look at this reaction now. So this negative charge is going to be reacted here now. Okay? अब क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला चार्ज जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट स्टेप. So यहाँ पे the tosyl is a good leaving group. So what happened in this case now? So this is my the negative charge is generated by the abstraction of the proton. यहाँ पे this is my negative charge and this is my tosyl group. What happened? We have the lone pairs on the nitrogen now. कहाँ पे lone pair? These two lone pair, and that lone pairs are responsible. That lone pairs are responsible to displace the tosyl group. Okay, that means the good leaving group is eliminated. What happened in the next step? This is double bond. क्या हो जाएगा next step में यहाँ पे? N. Again, this is double bond N now. Now, what are the charges on to this molecule? This nitrogen हमारा अभी आपका. Now, next one, you know that. So this molecule is undergo the elimination reaction. कैसे होता है? Look at this one. So this negative charge is going to be react here, and this will be going to. Okay, and in the next step, क्या बन रहा है यहाँ पे? This is N, triple bond N. This nitrogen must be a positive and this must be a negative. Now the self elimination of what N2 molecule, that will leads to the negative charge on the carbon, and that structure is also be represented as carbene. Okay, so this is what the important reaction where carbenes are. फिर N2 चला गया, फिर आपको कार्बिन मिला है. अब यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम हम यूज करते हैं बैम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन में. सो एक होता है प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट. इन अप्रोटिक सॉल्वेंट कार्बन आर डेवलप नाउ, कार्बिन्स आर डेवलप्ड. ओके, और जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल रहेगा यहाँ पे या जो भी आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी वो आगे चलती रहेगी. बट द मेन थिंग इज दैट सो देयर इज एन जनरेशन ऑफ कार्बिन इन द इन विच रिएक्शन? इन बैम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन. ठीक है, अब कार्बिन से क्या होता है? कार्बिन हमको पता है, कार्बिन बन गया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बिन हो गया. ओके, सो दैट कार्बिन इज गोइंग टू बी अंडरगो द रीअरेंजमेंट. एग्जांपल, अगर यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, so that hydrogen is going to be migrated at here. Okay, and this lone pair is going to be shift here now. So it will be form a alkene now. मतलब मेन आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड टू from carbonyl king. Okay, so in this reactions we are going to convert carbonyl compound to the olefins now, and this is the one of the well known reaction which is similar to that of Shapiro reaction. Look at this simple reaction where we are going to convert carbonyl compounds to the olefin via the carbene. Via किसके थ्रू जा रहे हैं अपन? Via what? The carbon. That's the one reaction. So I will give the simple example to you. Now find out the product of this reaction. चलिए, इसका सबसे पहला रहेगा आपका द बेस, then yes, so that going to be converted into the cyclo. Going to convert that simple carbonyl compounds into the olefins now. Okay, anyway, so in generally what the carbon is very reactive and electrophilic species. Their reactivities depend upon the methods and what conditions and how which you can prepare. Okay, कार्बिन की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है CH इंसर्शन. सबसे पहले जो है कार्बिन क्या क्या दिखाता है? कार्बिन अंडरगो द सम स्पेसिफिक रिएक्शन. आई विल गिव द सम लिस्ट टू द रिएक्शंस नाउ. कार्बिन सबसे पहले एडिशन दिखाता है. एडिशन कहाँ पे दिखाएगा? डबल बॉन्ड पे. कार्बिन जो है ये इंसर्शन भी दिखाता है. कार्बिन इज गोइंग टू इंसर्ट in between the active bonds. Carbene undergo the skeletal rearrangement also. Carbene undergo the skeletal. कितनी रिएक्शन दिखा रहा है ये? ओके,
सो तीन अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन जो है ये कार्बिन दिखाता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन रहेगी हमारी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन, एक है इंसर्शन रिएक्शन और एक है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एडिशन का मतलब ये होता है कि सपोज अगर मेरे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और मैं इसके ऊपर कोई CH2 की रिएक्शन कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली मुझे साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। ओके, तो मुझे मेरे पास CH2 चाहिए होता है, यहाँ पे CH2 कार्ब, ये कार्बन चाहिए, तो मुझे साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज इंसर्शन नाउ? इंसर्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे एक्टिव बॉन्ड प्रेजेंट है। व्हेनेवर आई हैव एन एक्टिव बॉन्ड का मतलब होता है कि कहीं पे CH होगा, तो कहीं पे NH होगा, तो कहीं पे OH होगा, तो इन सब जगह पे हमारा CH2 जो है वो एज ए इंसर्शन का काम करेगा। तो एग्जाम्पल अगर हम लेंगे यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, ये CH2 और H हो जाएगा। लुक एट दिस रिएक्शन, N के पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और O के साथ क्या हो जाएगा, दिस वन। सो दैट व्हाट द इंसर्शन रिएक्शन। अब रिअरेंजमेंट रिएक्शन में भी ये पार्टिसिपेट होता है। रिअरेंजमेंट का मतलब जैसे एक हमारे पास ओल्फ रिअरेंजमेंट है, वी हैव द ओल्फ रिअरेंजमेंट एक, उसके बाद हम ये वाली भी रिएक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। हाँ, ओल्फ में पार्टिसिपेट होता है द रिअरेंजमेंट रिएक्शन, दैट इज ओल्फ, इन विच द CH2 इज इन्वॉल्व एंड अंडरगो द रिअरेंजमेंट। ठीक है, तो कितने रिएक्शन है इसके फिर, 8 टाइप। और कुछ एडवांस रिएक्शन में जाएगा तो ये जाएगा, एडवांस रिएक्शन में जाता है ये वाला। और भी अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, नेम रिएक्शन, ठीक है, इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। तो हमने इसके पहले भी एक बार एक रिएक्शन पढ़ी थी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ साइमन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, साइमन स्मिथ एक रिएक्शन रहेगी। द नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट इज कॉल्ड एज ए आज जो हमने पढ़े, दैट इज बैम्फर्ड स्टीवन। ठीक है, ये भी उसी का एक पार्ट है आपका, बैम्फर्ड स्टीवन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सेम रिएक्शन। एंड मेनी rearrangement reaction, example Wolff rearrangement। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जहाँ पे कार्बिन आपका होता है। ओके, चलिए अब हम इस पे फोकस करेंगे कि हाउ दिस कार्बिन्स आर इन्वॉल्व इन द एडिशन रिएक्शन एज वेल एज इंसर्शन रिएक्शंस एंड व्हाट द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलिए एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बिन नाउ, ये एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सो एग्जांपल, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्बिन। सो वन कार्बिन इज कॉल्ड एज ए सिंगलेट कार्बिन, ये वाला, और एक जो कार्बिन है हमारे पास वो है ट्रिपलेट कार्बिन, right? So one is a singlet, second is a triplet. This is singlet, and this is going to be called as a triplet. Always remember, singlet specific. Which one? Singlet. So singlet carbon, all the singlet carbon reactions are stereospecific. And here, triplet carbon addition reactions are non-stereospecific. Then what does it mean by the stereospecific, non-stereospecific? You know that for a simple double bond reaction, suppose I have the simple double bond and I am going to react with any carbon, whatever carbon is there, singlet or either triplet, now we will get the same product. Okay, because the stereochemistry is not defined, so यहाँ पे हमको सीधा सीधा साइक्लोप्रोपेन मिल रहा है। This is simple addition reaction. But when I take the stereochemistry or when I consider the stereochemistry from the reactant, what happen now? Suppose अगर मेरे पास cis molecule है, cis 2 butene है, और cis 2 butene पे मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा मॉलिक्यूल यूज कर रहा हूँ, सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो कैसे रहेगी, सेम रहेगी, अपोजिट रहेगी उस हिसाब से। और सिस अल्किन लिया हुआ है, तो मुझे सिस प्रोडक्ट ही मिलना चाहिए, एंड अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्ट भी जो है वो सीस ही मिलता है यहाँ पे। दिस इज व्हाई दिस इज हैपन। अगर मैं ट्रांस अल्किन लूंगा तो मुझे ट्रांस ही साइक्लोप्रोपेन मुझे मिल रहा है वहाँ पे। दिस प्रोडक्ट इज आल्सो द सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री। व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रिएक्शन? तो पहले क्या करते हैं अपन, पहले डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, दिस वन, और फिर मैं कार्बन को कंसीडर करूंगा यहाँ। देखो इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज दिस फैशन। जो पाई बॉन्ड हमने निकाला हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, एंड जो कार्बिन मैं निकाल रहा हूँ, सो दैट इज दिस इज माय कार्बिन, दे आल्सो हैव अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है क्या आपके? ओके, दैट मीन्स इन particularly the singlet carbene, the orientation of electrons are what, opposite.
और किसी भी पाई बॉन्ड के भी अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे कंसिडर करेंगे, so they are also what opposite now. So what happened during that process now? So very simply, so this oppositely spin electrons get easily combined now. ये इसके साथ combine हो रहा है और ये इसके साथ combine हो रहा है without any rotation, without any changing the spin, etc etc. कुछ हो रहा है कि यहाँ पे? No, they are easily get combined and they form a specific product. और ये क्या हो रहा है आपका? दोनों भी आसानी से आपके जुड़ जा रहे हैं वहां पे and finally that will be going to form a product without क्या? Without carbon carbon bond rotation and without spin rotation. कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी इसको. इसका मतलब जो भी सिंगलेट कार्बन रहेंगे उनकी रिएक्शन हमेशा स्टीरियो स्पेसिफिक रहेगी. ठीक है. अगर मैं ट्रांस अल्कीन लेता हूं तो क्या हो जाएगा? ट्रांस अल्कीन में भी वही सेम रहेगा. सपोज आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल फ्रॉम ट्रांस अल्कीन, सो उसका भी सेम रहेगा. ट्रांस अल्कीन में भी आपके पास ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रहेंगे? दे आर ऑलरेडी व्हाट इन दिस फैशन. देखो यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाता हूँ अपवर्ड तो इसको दिखाऊंगा मैं डाउन. दे आल्सो गेट कंबाइन बट द स्टीरियोकेमिस्ट्री वो रिटेन रहेगी. वो बदलेगी क्या इसकी? ऐसे प्रोडक्ट हमको मिल रहा है. दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर द सिंगलेट कार्बन reactions are stereospecific, but it is not same to that of what your triplet for not for the triplet one. So for triplet we are have this type of stereochemistry. ठीक है. और मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ मेरा ट्रिपलेट कार्बन. अब ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है? इन ट्रिपलेट कार्बन तो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन सेम साइड. जो पाई बॉन्ड है वो आपका लगा हुआ रहेगा अपोजिट इसमें. अब इसमें होता क्या है कि जो अपोजिटली चार्जेस लगे वाले हैं वो फटाफट बॉन्ड बना देंगे. दैट मीन्स दिस विल बी गोइंग टू मेक अ बॉन्ड विद दिस. बट ये वाला जो सेम सेम साइड से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा क्या आपका? ऑन दिस साइड देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस इन ट्रिपलेट कार्बन. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई भी एक जो है वो आसानी से बॉन्ड बना देगा. किसके साथ? आपके कार्बन के साथ में एक बॉन्ड बन गया. दिस वन एंड व्हाट दिस वन. बताइए अगर इनको दोनों को बॉन्ड बनाना है, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ? क्या करना पड़ेगा कि अगर स्पिन मुझे इनका बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज आ जाएगा. एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक उस कार्बन कार्बन को रोटेट कर सकते हैं और एक हो सकता है हमारा जो कार्बन का जो स्पिन है उसको हम क्या कर सकते हैं? इन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसको हम बोलेंगे स्पिन इन्वर्जन और इसको हम बोलेंगे सीसी रोटेशन. क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन होना पॉसिबल है. सो दैट मींस दैट विल बी अंडरगो द रोटेशन. एक तो ये हो सकता है या तो फिर जो स्पिन आपको दिख रहा है कार्बन के ऊपर उसको भी हम जो है वो इन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर. फिर इनमें से दोनों में से लेना कौन सी? बराबर, दोनों भी प्रेजेंट है आपके पास. तो जनरली क्या होता है? सीसी बॉन्ड रोटेशन रिक्वायर्ड लेस टाइम देन नॉट द स्पिन इन्वर्जन. फिर हम क्या करते हैं? एक बार सीसी बॉन्ड दोनों भी पॉसिबल है. ठीक है. तो एक बार सीसी बॉन्ड रोटेट करने से क्या हो जाएगा? सो लुक एट दिस. एक बार हमने सीसी बॉन्ड रोटेट कर दिया तो तुमको ये वाला मिल रहा है. ठीक है. और एक बार मैं क्या कर रहा हूँ इसको स्पिन इन्वर्जन कर रहा हूँ. जब स्पिन इन्वर्जन किया तो वहाँ पे मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज होना है क्या? वहाँ पे चेंज नहीं होगा आपका. सो दैट हाँ मीन्स व्हाट हैपन हियर नाउ. ये बहुत इंटरेस्टिंग टास्क हो गया आपका. ठीक है. यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन को रोटेट कर दिया तो ये स्पिन ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो गया. और यहाँ पे मैंने क्या किया है? स्पिन को इन्वर्ट किया है. सो दैट मीन्स लुक एट दिस वन एंड नाउ यू कैन ज्वाइन दिस टू बॉन्ड्स नाउ. अब हम इसको आसानी से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिले हैं. देखो पहले यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. कितने प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं? टू टाइप्स और पहले ट्रांस और रिएक्शन में कितने मिले? ओनली वन. सो स्टीरियोस्पेस. दैट मीन्स you get the only one product now. But in this reaction you get the two products. Mixtures of products are obtained now. और ऐसे reactions में स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी क्या थी पहले? Your compound is cis now. कंपाउंड क्या था आपका पहले? सिस था. सिस तो सिस भी मिल रहा है यहाँ पे और ट्रांस भी मिल रहा है. ट्रांस भी मिल गया. और ट्रांस इसीलिए इस रिएक्शंस को या ट्रिपलेट एडिशन जो भी है कौन सा वाला ट्रिपलेट कार्बन एडिशन रिएक्शंस आर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक. आप चाहे सिस ले लो आप चाहे ट्रांस ले लो यू ऑलवेज गेट द दोनों भी मिक्सचर्स ऑफ. प्रोडक्ट. इफ आई कंसिडर द ट्रांस अल्कीन नाउ अगेन द सेम मैकेनिज्म. अगर मैं ट्रांस अल्कीन लेकर कार्बन की रिएक्शन कर रहा हूँ कौन सा कार्बन है मेरे पास? ट्रिपलेट कार्बन. So again I am get the same product now. Okay, without going to do this mechanism and all these things. So I will simply write the first product should be my ये this सिंगल. orientation. So यहाँ पे है और यहाँ पे. So भी इसमें दिखाना पड़ेगा. ठीक है. ये हो गया. और मुझे जो बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो मिक्सचर्स आपको मिलेंगे.
सो आई विल गेट द मिक्सचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। पहले तो ट्रांस का ट्रांस मिल रहा है, बट ट्रांस का सीस भी हो जाएगा। और ऐसी रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं बोलते, क्योंकि कैनॉट गेट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यहाँ पे स्पेसिफिक आपको मिल रहा है क्या, वी गेट द मिक्सचर। सो ऑलवेज रिमेंबर प्रोपेनेशन इज ऑकवर्ड हियर। सो सीस गिव द सीस एंड ट्रांस गिव द ट्रांस। ऐसे होता है जैसे सिंगलेट के बारे में। So this is my reaction CHBr3 in the presence of what, alcoholic KOH और tertium beta oxide, पोटेशियम ब्यूटा ऑक्साइड में। ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ब्रोमोफॉर्म है वो रिएक्ट होगा पहले बेस के साथ में, और मुझे जो कंपाउंड मिल रहा है वो मिल रहा है CBr2। क्या मिल रहा है मुझे कंपाउंड, CBr2। अब हमेशा जनरली ब्रोमोफॉर्म से या क्लोरोफॉर्म से जब हम बनाते हैं तो ये हमेशा सिंगलेट ही होता है। क्या होता है ये, सिंगलेट। और सिंगलेट कार्बन की रिएक्शन कैसे होती है, Stereo specific. कैसे, it is stereospecific. Okay, Hmm. so that means already the stereochemistry is given, so it Hmm. will converts to this one। तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको आसानी से। सो दीज आर माय द टू बॉन्ड्स। अब इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कैसे दिखाएंगे, हो गया आपका सीसवा। ठीक है। और नीचे में मैं यहाँ पे मेरे जो दो ब्रोमीन है वो लगा दूंगा मैं। सो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। एंड मेनी मोर एग्जांपल्स आर गिवन दैट विल going to proceed via the singlet carbene now, and the product is at the stereo specific products are there। so ये ऐसे कुछ एडिशन रिएक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे। so और भी आप इसमें एडिशन करवा सकते हैं कि जैसे एग्जांपल आपके पास कोई ये दिया हुआ है, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी दी गई है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। एंड इफ आई एम गोइंग टू रिएक्ट विथ माय कार्बन, it will going to be react with the opposite side to that of what methyl group। so why this is so now, because the three member ring is going to be takes place on the sterically less crowded side, and these reactions are called as a stereoselective reaction। this will be going to be called as a, ये specific हो गया, ये selective हो गया, because you get the one predominant stereoisomer। ठीक है। so carbene have the three important reactions: addition, insertion। now we're going to discuss the insertion। so insertion reactions are very much important because it transform to the new functional group now। okay, and generally what this carbene is undergo the intramolecular or intermolecular CH, NH or OH insertion, it will provide the new molecule, and that is very useful in the synthetic organic chemistry now। okay, so अब यहाँ पे insertion reaction जो है वो कहाँ पे होती है वो अपन देखेंगे पहले। इंसर्शन रिएक्शन, जनरली इंसर्शन आपका एक ही मॉलिक्यूल में होता है, इसकी वजह से इसके इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस तो नहीं है, देयर ओनली इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर देयर। सो हाउ द CH इंसर्शन एंड एक्सेट्रा विल बी गोइंग टू बी टेक्स प्लेस नाउ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से बॉन्ड है जहाँ पे इंसर्शन होता है आपका। एक तो होता है एक्टिव CH, एक तो होता है आपका NH, या तो होता है आपका OH। सो अगर CH में चला गया तो एक कार्बन बढ़ेगा, NH में चला जाएगा तो हम लोअर अमाइन से हायर अमाइन बनाते हैं, और अगर OH में जाएगा, जैसे अल्कोहल का OH में चला गया तो ईथर बनेगा, एसिड के OH में चला गया तो एस्टर बनेगा। ऐसे अलग अलग आपको मॉलिक्यूल्स वहां पे मिलेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए CH इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है जिसको अपन ओल्फ रीअरेंजमेंट अपन बोलते हैं। सो दैट going to be called as a Wolff reaction, and now this reaction is going to be takes place from acyl carbene, CH2N2। ठीक है, this is my molecule now, and when I this molecule is going to be react with H nu, okay, and first of all this reaction is going to be react with base now। क्या हो जाएगा पहले, R C double bond O, and this is CH negative, and this is N2। in this reaction what N2 is going to eliminated itself, and it will be going to form R C double bond O CH negative। that CH negative is we can mention in this form। तो ये जो बना है इसको मैं बोलूंगा
असाइल कार्बन। कैसे बना ये भी डाइजोमीथेन से बना है, लेकिन हमने जो ऑलरेडी कार्बोनिक कंपाउंड लिया है, तो पहले बेस क्या कर रहा है, मोर एसिडिक प्रोटॉन निकाल रहा है, ठीक है। और मोर एसिडिक प्रोटॉन निकालने के बाद यहाँ पे सेल्फ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट N2 गेट एलिमिनेटेड। इसका आप रेजोनेंस भी निकाल सकते हैं। रेजोनेंस अगर आपको निकालना है तो कैसे बनेगा, RCO C नेगेटिव, दिस इज H, और ये कैसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो N2 पे आपका चार्ज दिया हुआ, सो इट विल गोइंग टू बी लिमिटेड इजीली। यहाँ से नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन पे वैसे के वैसे ही, एंड दैट नेगेटिव चार्ज नथिंग बट द कार्बन। अब ये असाइल कार्बन जो है ये 1,2 रिअरेंजमेंट में जाता है। सो लुक एट दिस असाइल कार्बन, RCOCH, दिस वन, दिस इज अंडरगो द 1,2 शिफ्ट। 1,2 शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि कार्बन तो डेफिशिएंट है, नाउ दिस R इज गोइंग टू बी टेक द पोजीशन ऑफ CH। हम ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं लिख सकते ना, तो इस मॉलिक्यूल को लिखने का एक तरीका है। सो दिस इज O डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज R, and this molecule is called as a, and that ketene is undergo the reaction। देखो ketene के साथ क्या हो सकता है फिर, now the ketene will going to participate in hydrolysis। तो ketene जो है ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेट होता है। ketene के साथ मैं रिएक्शन कर सकता हूँ सबसे पहले वाटर की, ketene के साथ नेक्स्ट इज व्हाट, अल्कोहल। देखो कीटिन के साथ मैंने पहले की वाटर किसकी रिएक्शन की, वाटर की। होता क्या है आपका, दैट वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी अटैक्ड एट हियर नाउ। लोन पेयर कहाँ पे, ऑक्सीजन, कहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे। मतलब कहाँ पे अटैक हो रहे हो, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। सो जैसे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक हो जाएंगे, सो इट गोइंग टू रिएक्ट, इट गोइंग टू ओपन द बॉन्ड दैट इज O, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे आपका आ जा रहा है OH2, एंड देन इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर की वजह से आपको प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लुक एट दिस वन। सो दिस इज माय R, क्या बनेगा यहाँ पे, CH2, and this will be going to be called as a COH। यहाँ पे क्या बनेगा, R CH2 C डबल बॉन्ड O एंड R, और यहाँ पे क्या बनेगा, R CH2 C डबल बॉन्ड O NHR। So from that ketene we are going to convert the different products now, and that is one of the important applications of what carbons now। So यहाँ पे हमने acid बनाया, this is called acid, this is my ester, and this is my amide। So that means that ketene is going to be convert into the different products। So these are called as the insertion reactions। अब हम इसका एक important example देखेंगे जो कि कई बार अभी तक CSR या और गेट एग्जामिनेशन और सपोज मेरे पास यहाँ पे मिथनॉल दिया हुआ, कैसे करना है इसको, always remember the CH insertion reactions are intramolecular Yes. not inter। कौन से वाली रिएक्शन सही है, मतलब वो उसके लिए दो दो रिक्वायरमेंट नहीं है अलग अलग, कार्बिन बन रहा है बस आगे चलना है। क्या होगा यहाँ पे, बेस कहाँ दिया है आपको, देखो whenever that N2 is given the molecule and along with that methanol is there, sorry H or Yes. light is there, that means first the breaking of that carbon nitrogen bond, so N2 will be eliminated Okay. first। और जैसे ही Okay. N2 निकल गया क्या हो हाँ. जाएगा, है ना, अब कार्बिन बन रहा है। अब कार्बिन जो है ये तो डेफिशिएंट है फिर इसको स्टेबलाइज कौन करता है, इसको स्टेबलाइज करता है उसके एडजेसेंट वाला बॉन्ड, मतलब अपोजिट टू दैट दिस वन। सो दिस बॉन्ड इज रिस्पांसिबल टू मेक द रीअरेंजमेंट। तो क्या हो जाएगा, दिस विल गोइंग टू माइग्रेट एट हियर, दिस विल गोइंग टू बी शिफ्ट हियर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, रिंग इज कॉन्ट्रैक्टेड और रिंग इज व्हाट, एक्सपांडेड ना। Why? ये उसके लिए आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, वी कैन गिव द नंबर 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 now। So 2 is going to make a bond with 6 now। 2 क्या हो रहा है, 2 is going to make a bond with 6 now। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब नंबरिंग दे दो ना, और क्या बच गया, 1 और 2 के तो बीच में बॉन्ड नहीं रहा। फिर हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ पे ये बन रहा है तुम्हारा डबल बॉन्ड, ठीक है। और अभी मुझे नंबरिंग देनी है ना, इसको नंबरिंग कैसे देनी है, सो पहले मेरा 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है,
अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा मैं इसको? हाउ? सो this molecule is going to be this is my carbon and this is get the ketene also, this is also ketene, तो नहीं है ketene है ना, और कोई है क्या? yes ketene, and now ketene is going to react with the this one. कौन दिया है इसको रिएक्ट करने के लिए आपको? मैंने आपको पहले बताया ketene के साथ अलग अलग रिएक्शंस अल्कोहल। करने हैं, इसकी रिएक्शंस करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, बस देख सकते। so this will going to be react at here, the bond will be open now. ठीक है, चलिए this is my, ऐसे बनेगा, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, this is my O M E and this is H. H को मैं इंटरनली ट्रांसफर कर रहा हूँ उधर, इधर O के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, this is my double bond, this is OME and this is what, OH. आ रहा है क्या समझ में? This will going to transferred on O negative, OME neutral Yes, होगी, sir. and it undergo the ketonal tautomerism. Hmm. जब ketonal tautomerism करेगा तो क्या हो जाएगा, the OH will participate at here, मतलब यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ पे पहुंच रहा है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। देखो पहले क्या आपका रिएक्टेंट था और आपका प्रोडक्ट क्या हुआ, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए रीअरेंजमेंट, दैट रिएक्ट, so everything is same, instead of that H nu and what thermal conditions, so I will give the one more reagent, that is copper in the presence of a benzene as a solvent. We are going to reflux that molecule particularly, and in the presence of what the silver, you can also, और silver भी ले सकते हैं instead of that copper, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी दिया जाता है, and the temperature of this reaction is 45 डिग्री सेल्सियस, जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसका यील्ड है 97%। So everything is same now, just consider instead of that H nu or the thermal conditions, so I give the special reagent. Copper is Okay. the metal responsible for the generation of carbene, silver is also the metal Okay. generation of carbene, आप रोडियम ले सकते हो उसकी Okay. जगह पे, रोडियम सॉल्ट भी कभी कभी दिया जाता है आपको। तो ये सब जो है ना, Okay. ये उसको निकालने के लिए, N2 को हाँ. निकालने के लिए अब क्या करना है इसके अंदर, कि कौन सा बॉन्ड आपको माइग्रेट करना है इसके अंदर, ठीक है। जो माइग्रेशन करने की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी ज्यादा होती है इसके अंदर, वो देखना है आपको यहाँ पे। सो इन दैट केस व्हाट द टू बॉन्ड्स आर देयर, जिसको अपन माइग्रेट कर सकते हैं, ये वाला एडजस्टेंट जो भी कार्बोनिल करेगा वही आपको माइग्रेट करना है ना, क्योंकि हमारे पास जो Hmm. सिंपल केमिस्ट्री है वो क्या है, सपोज आई हैव दिस इज माय कार्बिन नाउ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मेरे को इधर वाला बॉन्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था ये वाला, ऐसे माइग्रेट करूंगा मैं उसके ऊपर एंड कार्बिन विल बी प्रोड्यूसर। सो सिमिलरली similarly what happened here now, so this bond is going to be migrate at here and this will going to be shift at here। तो अभी आपके पास क्या हो रहा है, तो अभी आपका रिंग हो गया कॉन्ट्रैक्ट, सो रिंग इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट नाउ, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ एंड नाउ आई एम डायरेक्टली कनेक्ट, है ना, तो रिंग तो कॉन्ट्रैक्ट हो Hmm. गया आपकी, एंड इफ रिंग इज कॉन्ट्रैक्टेड नाउ देन वी आर गोइंग टू रिएक्ट विथ द मेथनॉल। सो जैसे आप मेथनॉल के साथ रिएक्ट करोगे इसको, अब इसको कोई और तरीका है क्या लिखने कि जहां से मैं इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख सकूं, तो आप नंबरिंग दे सकते हैं ना इसको, तो अपन इसको Hmm. कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि मेरे पास एक 5 मेंबर रिंग है ये वाली, और 5 पोजीशन, 1 पोजीशन पे क्या क्या दिया हुआ है, 1 पे मिथाइल है COO Hmm. ME, ठीक Any. है। Hmm. अभी मुझे क्या करना है इसमें,
So this is my 1, 2, 3, 4, 5. So consider that this carbon is a 6 numbered. This will be a 6 one. और ये किसके बीच में लगा हुआ है 1 और यानी कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ और इसको 2 ठीक है मिनट चलिए तो ऐसे भी करके आप इसको कर सकते हो दिस कॉल्ड द कार्बीन्स रिएक्शन सिमिलरली एक मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसको आपको इंसर्शन रिएक्शन में देखना है कार्बिन्स आर ऑलवेज इंसर्टेड इन बिटवीन द एक्टिव पोजीशंस यहाँ पे एक्टिव तो पोजीशन है नहीं फिर हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कार्बिन अगर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6 now either this hydrogen or either this hydrogen which hydrogen is going to be insert here oh yes 5 member rings are quite more stable than what the 6 one more stable so that's यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका so, in that reaction what insertion is going to be takes place now and here this is methyl now look at the numbers तो जहाँ पे आपका R था तो ये वाला कार्बन पहला हो गया ये दूसरा हो गया this is R okay 3 4 5 and this is 6 now so that means this carbon itself is going to be inserted here now and this hydrogen is going to be at here so double bond is रहेगा वहां पे डबल बॉन्ड नहीं जाएगा कहीं पे so this will be the double bond so the various reactions are there in which water insertion is there now example लेता हूं मैं यहाँ पे अल्कोहल है तो ये हो जाएगा आपका this one if any carboxylic acid is there this one if phenol is there phenol का क्या हो जाएगा phenol is going to convert to anisole that is this one so there are various reactions are there in which are proceed from the carbenes now in the last lectures where we are discussed the Simon Smith reaction वो भी हमने डिस्कस किए थे aromatic compound को हम क्या cyclopropane convert कर सकते हैं is it possible to convert that aromatic compounds to this one is it possible so this reaction is very specific example where we are going to use the CH2N2 in the presence of copper salt so the addition of carbene onto the aromatic ring it leads to the expansion of ring now first what happened now methylene is going to the diazomethane is going to converts into the CH2 and that CH2 is highly reactive okay and it going to add onto the benzene देखो कितना yield भले ही इसका कम रहेगा it develop the one molecule that is given that is benzene cycle ऐसा कुछ हमको मिला है and that molecule is undergo the co-prearrangement which is an example of pericyclic reaction so co-prearrangement में क्या होता है so cycle becomes get extended now this bond is going to be shift here this will be going to be shift here and this will be going to be shift here so you will get the cycloheptatriene you get the one cycloheptatriene so that is the 7 membered ring is developed कहाँ पे बॉन्ड आ गया आपका कहाँ पे आ गया one is here second is here third is here so this reaction is called as a cyclo so this reaction is called as a co-prearrangement and it is an example of which reaction and this is simple addition reaction okay we'll move to the next reaction we already discussed this reaction that reaction is called as a Simon Smith reaction
तो साइमन स्मिथ रिएक्शन में हमने इसके पहले भी पढ़े थे, वापस से मैं इसको दोहराता हूँ. So when iodometane is going to be react with the zinc copper, it will produces the CH2I and ZnI. This type of the complex is developed now. और ये जो कॉम्प्लेक्स है हम डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करते हैं. ठीक है. विच कॉम्प्लेक्स? CH2I ZnI. now it undergo the reaction like this will be eliminated and you will get the product that is cyclo. This reaction is responsible for the cyclopropanation. Okay, without affecting to the other functional group, this reaction is very important. So one can call a valuable transformation. Okay, that reaction is called as a Simon-Smith reaction, in which we are going to convert alkene to cyclopropane in the presence of what iodomethane, diiodomethane, and zinc copper or dimethyl zinc. देखो क्या क्या रिएजेंट यूज करते हैं इसमें? डाइआइडोमीथेन CH2I2 और इसके साथ में क्या क्या लिया है? जिंक कॉपर ले सकते या फिर आप Et2Zn. Et2Zn अगर कभी आएगा आपको तो कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर. ठीक है. सो दीज आर द रिएजेंट्स फॉर द. और इस रिएक्शन का काम क्या है? Okay, cyclopropane. Okay, and in this the important thing is that in this reaction particularly, so without affected to the other functions, selectively double bond पे react होता है. So that will be the most important case now. Example अगर मेरे पास मैं ये वाला डबल बॉन्ड लेता हूँ, just wait. So if I consider this is my double bond now, look at this one. This is an hydrogen. कौन सा alkene है ये? C8H17 and this is CH2 on 7 time CO2Na. और ये रिएक्शन में इतने सारे अभी फंक्शनल ग्रुप पे आ गए, डबल बॉन्ड के साथ ईस्टर भी आ गया. और जब मैं इसको रिएक्ट करता हूँ किसके साथ? डाइआइडोमीथेन इन जिंक कॉपर, पहला रिएजेंट रहेगा. और दूसरा रिएजेंट मैं यूज कर रहा हूँ इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर. पहले से क्या हो रहा है? चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या रहेगा. ये तो मेरा C8H17 तो वैसा ही है. नीचे क्या रहेगा? यहाँ पे जो था वैसे रहेगा ना पहले. और इधर क्या है? ये वाला. अब यहाँ पे मैं लिखूंगा CH2 बिकॉज यहाँ पे जो बना है वो साइक्लोप्रोपेन बन गया. ओके, ये तो काम पहले का था. अब इसने एडिशन क्या दिया है? इसने एडिशन दिया है NaOH और वाटर. अब सिंपल सी बात है, ये जो NaOH है वो है बेसिक मीडियम या न्यूक्लियोफिलिक मीडियम है. साइक्लोप्रोपेन के साथ तो कुछ होगा नहीं. हाँ, अगर वो इपॉक्साइड होता, CH2 की जगह पे O अगर होता तो फिर वो NaOH उधर रिएक्ट करता, रिंग ओपन कर देता उसको. बट साइक्लोप्रोपेन कभी ओपन नहीं होता है. फिर है कौन इसमें? ईस्टर है. फिर ईस्टर का क्या होता है? ईस्टर इज गोइंग टू बी कन्वर्ट्स टू, ईस्टर किस में जाएगा? So ester is going to be converts into the carboxylic acid. So look at this reaction. When RCOO, R is there, and I am going to react with water or what NaOH or simple OH now. What happened now? OH is going to react carbon carbon. Bond will be open to oxygen first, back to carbon, and OR will be free now. So in that reaction, RCOOH is formed. इतना आसान नहीं है. Yes or no? Conditions are given to you now. So think on whole molecule, not on the specific group now. Okay, that's why this reaction is a selective reaction. Why it is called selective reaction? Because it only first step is only on the double bond. Okay, remember. Okay, so Simon-Smith reaction have three selectivity. First is called as a regio selectivity. I have more than one double bond. I have what? More than one double bond.
Example is this, and I'm going to do the cyclopropionation. So where it will be possible now? हाँ, Isolated. And this is what? Conjugate. So isolated double bonds are more nucleophilic, and your reagent is carbene. Your reagent is deficient. So this is electron rich. This is electron deficient. This is electron deficient. So electron rich must be react with electron deficient. So the product of this reaction should be this one. So always remember, so the electron हाँ, rich position will be preferentially undergo the cyclopropionation now. Okay, this is called the regioselectivity of that Simon Smith reaction. The next example is stereoselectivity. So in stereoselectivity particularly, suppose a double bond is given, then you can make a two types of what cyclopropane with equal amount. Example, मैं ये भी वाला बना सकता हूँ प्लस ये भी बना सकता हूँ. दिस इज नॉट द सिलेक्टिव रिएक्शन. इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉन सेलेक्टिव, बिकॉज दिस इज ऑप्टेन 50%, दिस ऑल्टो 50%. तो ये रिएक्शन सिलेक्टिव होगी क्या? सिलेक्टिव का मतलब होता है कि अनइक्वल अमाउंट्स में आपको प्रोडक्ट्स मिले. अब जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, अब साइक्लोप्रोपेन जो है वो हमेशा आपका स्टेरिकली लेस क्राउडेड साइड से बनेगा. इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और स्टेरिकली लेस क्राउडेड, यानी कि मिथाइल ग्रुप जहाँ पे है उसके अपोजिट में, so that isomer will be the predominant. इसलिए इसको बोलते हैं अपन मेजर स्टीरियो आइसोमर. सो दिस इज कॉल्ड द मेजर स्टीरियो आइसोमर. और एक कंसेप्ट इसमें और भी है, दैट इज कॉल्ड चिलेशन. चिलेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इसके पहले, कि सपोज एग्जांपल चिलेटिंग ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट है यहाँ पे, OH, OR और NR2 इज देयर नाउ. Okay, then you can do the your cyclopropionation, that is CH2, I2 and ZnCO, especially on the same side of that chelating group now. So why this is so now? क्या हाँ, होता है कि ये जो स्पीसीज है CH2N2 जो है ये क्या बनाता है? कार्बिन बनाता है, दैट इज CH2. अब ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया है रिएक्टर, इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एक है लोन पेयर वाला OH या OR ले सकते हैं या NR ले सकते हैं, और दूसरा है आपका डबल बॉन्ड. अब ये जो कार्बिन है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ जाता है, और दिस पार्ट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन द डबल बॉन्ड. सो द फर्स्ट रिएक्शन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस बिटवीन द चिलेटिंग ग्रुप एंड द कार्बिन. सो चिलेटिंग ग्रुप कहाँ पे आपका? वो है अबोव द प्लेन. कहाँ पे? अबोव द प्लेन. सो दैट्स व्हाई द CH2 विल आल्सो बी गोइंग टू बी देयर एट द अबोव द प्लेन. और वहां से वो डिलीवर करता है जहां से आपका जहां से आपका अभी ट्रांजिशन स्टेट बना था. इसलिए हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आपका चिलेटिंग ग्रुप रहे, this reaction what it is a different, because this is only the electron rich part, so it is going to react with the your molecule. Okay, so I will take the simple example. चलिए, क्या आएगा इसका आंसर? Okay, this one without affecting other, this is my OH at the above the plane, so the cyclopropane will be developed also. Okay, remember this. Okay, so these are the reactions from the Simon Smith. और एक है स्टीरियो स्पेसिफिक. अभी तक जो हमने देखा स्टीरियो सेलेक्टिव, रिजियो सेलेक्टिव, और क्या रहेगा? ये वाला स्टीरियो स्पेसिफिक. तो स्टीरियो स्पेसिफिक में सीधी सीधी बात है, आपके पास अगर आपको सिस दिया जाएगा तो उसका आंसर सिस होगा, और आपको अगर ट्रांस दिया जाएगा तो क्या रहेगा इसका आंसर? ट्रांस.
रिएक्शन आपकी थी। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। इसके पहले भी हमने कुछ रिएक्शन हमने देखी थी साइक्लोप्रोपेनेशन से रिलेटेड, तो आप उसको भी इसके साथ कंबाइन कर सकते हो। अब कुछ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस हैं जहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपको वहाँ पे। सो कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स? दिस इज माई डबल बॉन्ड। ये आपको दिया है मैंने स्टार्टिंग में कि हमने कार्बन जनरेट करना है पहले, इसको थर्मोलिसिस करना है आपको पहले, ठीक है। बहुत बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें करना। पहले ये ब्रेक होगा तो कार्बन बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और वही कार्बन आप क्या, यानी कि इसमें ये कार्बन पे कुछ नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या बनेगा, CH CO2 80 बन जाएगा। और ये मेरा डबल बॉन्ड है, तो सिंपल सी रिएक्शन में क्या करूंगा इसके साथ में, सो दैट डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी रिएक्ट विथ दिस, सो दिस विल गोइंग टू बी रिएक्टेड हियर। इसको बोलते हैं चिलोट्रोपिक एडिशन। और जब ये हो जाएगा तो क्या हो, यहाँ पे ऐसे वाला प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बीन्स नाउ, द रिलेटेड रिएक्शंस ऑफ द कार्बन। एक और रिएक्शन मैं आपको दूंगा, आप इसको सॉल्व करो घर पे। Solve this reaction, and this is all about the chemistry of a carbene.